नमस्कार फ्रेंड, हेलो। अभी हम नेक्स्ट स्टेप्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं सिलेबस का। हमने लास्ट टाइम किया वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रायल। उसमें उसके बाद कुछ कुछ है जो हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे सिविल मैनुअल के ऊपर। सो वन इज एग्जामिनेशन ऑन कमीशन, ये टॉपिक है सिलेबस में। एग्जामिनेशन ऑफ कमीशन क्या है वो देख लेते हैं। उसको ऑर्डर 26 बोलता है, अलाउज द कोर्ट टू इशू अ कमीशन टू एग्जामिन अ विटनेस हु अनएबल टू अटेंड ड्यू टू इलनेस और अदर एनी अदर रीजनेबल कॉज। मतलब वो जो विटनेस को हम प्रेजेंट करना चाहता है एडवोकेट, वो आ नहीं सकता, तो कोर्ट भेजता है एक कमीशन को विच विच रिकॉर्ड्स द एविडेंस। फिर वो एविडेंस रिकॉर्ड करके, अगर वो आदमी हॉस्पिटल में जिसका विटनेस है उसको रिकॉर्ड करके फिर कोर्ट में आके उसको रीड आउट करता है। सो द सीपीसी controls the granting of time. It states no. So what happens is CPC gives you the commission, the court to issue a commission to be able to record or examine a witness. So let's go ahead with what are the next other things that we need to be understanding. The next thing that we need to understand is the execution of decree. हमने judgment और decree stages of trial में पढ़ लिया था। एग्जीक्यूशन क्या होता है? अभी डिक्री आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉपर्टी का मैटर है और वो पार्टीशन करना है या कुछ ऐसा मैटर है, सो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूशन कोर्ट। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज जो पार्ट ऑफ सिलेबस में लिखा, द लीगल प्रोसेस टू इन्फोर्स द डिक्री थ्रू द कोर्ट। सो CPC section 36 to 74 covers this. So what happens? The procedure for execution क्या? The application for execution proceedings is mandatory notice to the judgment data and a methodical realization of the decree. So जो execution court है उसमें अप्लाई करते हैं, वो अलग कोर्ट्स होते हैं, उसमें अप्लाई करके फिर execution order करता है। सपोज कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर तो इट में इशू execution instruction to the collector of the area or to other revenue department member and say this needs to be done and issue the relevant orders so that the matter gets executed at the ground level. So that is as far. So 2-3 parts were, one is judgment जो कोर्ट देती है, उसके बाद डिक्री देती है, फिर वो डिक्री लेके जाके जो जीत जाता है वो लेके जाता है and gives it to the execution court, and वहां पे भी एक टाइम फ्रेम चलता है till the time the court executes the decree. Now the execution court cannot go into the merits of the case again. उनका काम है डिक्री है उसको एग्जीक्यूट करना। At no point they have the authority to go behind and try to figure out what were the merits of the case और ये judgment इस तरह पहुंचा कैसे, because the judgment itself is a very reasoned order and the decree is a formal enforceable command which is already issued by the court. So the judgment, the execution court, the judge cannot alter, add or to the judgment after it has been signed and it's given to, वो कुछ नहीं change, वो its job is only to be able to execute the decree which has been given. So let's go across to what are the parts of execution of the decree. So execution is often deemed to be the life of litigation. अभी जितना केस चला इतने साल, उसके बाद वो एक पेपर जो डिक्री था in favor of the person who's won the case, वो implement, because that is the life of the case. Specifies that the section 38 CPC specifies the courts can execute a decree that the court has passed. Mandates that the format of application of the execution proceedings. उसके बाद जो and the notice is served, मतलब execution notice कोर्ट जो है जजमेंट डेटर जो हार गया उसके ऊपर नोटिस सर्व करेगा, भाई आपसे ये एक्सपेक्टेड है, आप केस हार गए, आपको ये अगर प्रॉपर्टी सरेंडर करनी या कुछ करना है उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे। अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व है तो उसको बुला के उसको एग्जीक्यूट करने के नोटिस इशू करेंगे। So civil manual provides detailed administrative procedures of the execution clause, including the process of issuing warrants of attachment for property or warrant for delivery or possession. हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी अटैच होनी है तो वो वारंट निकलेंगे, हो सकता है किसी को ए पार्टी से बी पार्टी को प्रॉपर्टी देनी है तो वो उसके ऑर्डर्स निकलेंगे। तो मेटिकुलसली ये सब
decree देख के one by one execution court is going to give. So this is how from judgment to decree to execution court it happens. Now the next topic that we deal with is copies and copying fees. It's very simple. See, following the judgment and two crucial post adjudication processes are vital. एजुडिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जजमेंट आने के बाद, डिक्री इशू होने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, या वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा या वो अपील के लिए जाएगा. दो पार्ट हो सकते हैं. द फर्स्ट इज जो भी है जैसा भी है, द फर्स्ट इज स्टेप इज टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम द कोर्ट अपॉन पेइंग द कॉपिंग फीस. एक कॉपी फी होती है जो आपको जो भी ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स है उसकी आपको कॉपी मिलती है. द सेकेंड इज द पार्टीज स्टैट्यूटरी राइट टू चैलेंज द डिसीजन थ्रू द अपीलेट रेमेडीज. जैसे मैंने बोला, जजमेंट आने के बाद जो एग्रीड पार्टी है, जिसके जजमेंट डेटर है, अगर वो हैप्पी नहीं है और ही डजंट वांट टू गो है रिलेंट, वो पीछे नहीं हटना चाहता, ही कैन गो फॉर एन अपील, which means he will need copies, certified copies from the court to file the appeal. This involves following specific appellate procedures laid down in CPC and relevant High Court, which requires immediate production of certified copies to the High Court. जो आप नेक्स्ट अपील, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, तो आपको वो सर्टिफाइड कॉपीज लगानी पड़ेंगी. सो कॉपीज लेके और ऑथेंटिकेटेड कॉपीज लेके डुप्लीकेट में, चाहे वो रिकॉर्ड्स हो चाहे वो डिक्री हो, आप अपील में जा सकते हो. स्टैट्यूटरी राइट है आपका अपील में जाने के लिए टू हायर कोर्ट. तो अपीलेट के जो प्रोसेस है, यू कैन स्टार्ट इंस्टीट्यूटिंग द अपीलेट सूट एट दैट नेक्स्ट कोर्ट लेवल. तो इसमें भी अपील भी जब फाइल करते हैं तो उसके दो टाइप है. हमने वन इज अपील लाइज फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री टू द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील्स. तो सपोज हमने सीनियर जज बात किया था, सीनियर जज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चला गया अपील, तो एक वो हो गई. तो वो अगर सीनियर जज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है तो वो एक फर्स्ट अपील हो गई. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी इंटरेस्टिंग नहीं निकला, मतलब समथिंग पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इट इज, then they can go to for a second appeal to High Court. Now second appeal is not much on the evidence, it is more to deal with the substantial question of the law. So High Court will look इसमें कोई law से related matter है या कोई interpretation है. Friends, we need to understand right up to district lot of evidence and all is look. As we proceed to High Court and as we look at Supreme Court, the air thins. Then it's not much of evidence, but it is how you interpreted the law. So this is where the second appeal comes in. So every appeal should be preferred in the form of memorandum signed by the applicant to his pleader and presented to the court or to such officer as appointed behalf. The memorandum shall be accompanied by the copy of the decree appeal from of the judgment on which it is founded. तो अपील के टाइम पे आपको वो प्रीवियस जो डिक्री निकली है वो सर्टिफाइड कॉपी लगानी, चाहे वो फर्स्ट अपील हो या उसके बाद उसकी सेकेंड अपील हो. नाउ द सिविल मैनुअल गाइड्स द ओरिजिनल कोर्ट स्टाफ ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंटायर कोर्ट रिकॉर्ड और द पेपर बुक टू द अपीलिएट कोर्ट वंस द अपील इज एडमिटेड. जब अपील के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैटर एडमिट होती है, तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स में पता लग जाता है हमारी अपील एडमिट होने वाली कि नहीं. अगर एडमिट हो गई देन इट इज अ सिग्नल फॉर द लोअर कोर्ट कि भाई ये जितने सारे रिकॉर्ड्स हैं अब अपने को ऊपर वाले कोर्ट में भेजना है. एक प्रॉपर बुक बना के, पेपर बुक बोलते हैं उसको, बना के अपीलेट लेवल पे उसको भेजना है. सो दिस इज एज फार एज द अपील्स आर कंसर्न एंड ऑल्सो द कॉपीज व्हाई दे रिक्वायर्ड, वी पे द कोर्ट फीस एंड द रिलेटेड पार्टीज कैन नाउ एक्सेस द सर्टिफाइड कॉपीज और ये अपील के टाइम पे वो लगा सकते हैं. सो वी अंडरस्टूड दैट कि देयर इज a judgment, there is a decree, you go to the execution court. After the judgment and decree, if you don't want it to go to the execution court, maybe जो जीत गया वो execution court जाना चाहता है, पर जो नहीं जीता वो जाना चाहता है अपील में. So within 30 days he can file an appeal. The moment he files an appeal, then execution court matter is stopped at that very moment and then the appeal goes through. Appeal 1 भी हो सकती है, appeal 2 भी हो सकती है. We have discussed appeal 1 and appeal 2. So this friend covers the entire gamut of what we had to do for civil manual, which is and let's look at the last part of it. We have done judgment, decree, execution. We have done copies and appellate remedies. यानी first appeal, second appeal,
अगर एग्जीक्यूशन के लिए दोनों नहीं है, उसमें से कोई भी कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो देन इट कैन गो टू appellate level also. So this is as far as the appellate remedies and procedures are concerned. And this closes our entire lecture series on civil manual, जो manual का module 1 है. Thank you. Over and out. Bye.